हमेशा किसी ना किसी का पल्लू पकड़े रहोगे। अब आपने पापा का छोड़ा, मम्मी का छोड़ा, आपने वाइफ का पकड़ लिया। I don't have to be married to be committed to anything. जब आप अनमैरिड हो तो आप एक खुले सांड की तरह हो। I think commitment is a state of mind and not a marital status. डाइवोर्स तो होगा तो बात की बात है, उसके लिए मैं रेडी हूँ। शादी एक डिमोनाइज्ड वर्ड है। जरूरी नहीं है कि शादी करना जरूरी है मुझे उसको बोलने के लिए वो मेरा सोलमेट लाइक सोलमेट कुड बी एंड आई कुड हैव मेनी। Are we on the same page कि इस एपिसोड में शादी को सपोर्ट करने वाले हाय एवरीवन, आई एम पार्थ। हाय, मेरा नाम है रोहित। माय नेम इज गौतम। और जो शादी के अगेंस्ट है Hi, I'm Himangi. हाय, आई एम अली। I'm Madhura. आएंगे आमने सामने। क्या वो किसी भी बात पे अग्री कर पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। क्या शादी एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ के लिए जरूरी है? नहीं। यस यस। मुझे ऐसा लगता है एक आदमी जो है, एक पर्सन कुड बी सिक्योर बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ओके, और उसे शादी करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। And stability comes so personally, right? Like I have to be stable. So that's why I don't think लेकिन- marriage brings stability. You have to be stable. लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर दो लोग साथ में रहते हैं तो वो एक दूसरे को अच्छे से समझ के, अच्छे से शेप करके लाइफ में आगे बढ़ सकें? लाइक गाइडेंस हमेशा इंसान को जरूरत होती है। तुम्हारा कभी फ्रेंड रह सकता है, कभी फादर रह सकते हैं, कभी मदर रह सकते हैं, कोई ना कोई लाइफ में हमेशा कोई ना कोई कंपेनियन रहता ही है। राइट। तो मुझे लगता है But शादी then फिर आप में कभी हमेशा हमेशा किसी ना किसी का पल्लू पकड़े रहोगे। अब आपने पापा का छोड़ा, मम्मी का छोड़ा, आपने वाइफ का पकड़ लिया। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, राइट? सो आई बिलीव दैट आप खुद में एकदम 100% डेवलप होकर भी लाइफ जी सकते हो। जरूरत नहीं है नहीं कि नहीं, आप पल्लू नहीं, And adding on to that- पल्लू नहीं है। जैसे दो लोग साथ में चिल करते हैं एज अ फ्रेंड, तो Right. कोई किसी का पल्लू नहीं पकड़ता है ना। And when it comes to security also, we as individuals are also very insecure. तो अगर हम लोग ही insecure है, सामने वाला भी insecure है, दोनों एक दूसरे पे बस insecurity डाल रहे हैं। What मतलब makes you think that being alone will let you develop and lose the insecurity? I think we all develop alone only. Yeah, but then doesn't being with someone accelerate the development process? Not necessarily. yeah, If what's you're- the guarantee to it? Yeah. That you course. will let go of the Most definitely, but insecurity. then you do have a choice to choose the person, right? I think there's a saying that in every 5 years, I mean, what you were 5 years ago, you're not right now. So you're choosing someone, probably an ex. 5 साल बाद या 2 साल बाद वो कोई और हो सकता है. So नहीं how भी are हो you सकता sure? है, नहीं भी हो ओके सकता है। ओके, लेट्स So it's a very big time gamble that you're going across. एक्चुअली for. लाइफ इज अ गैम्बल, तो नहीं Life भी हो is a सकता है, हो gamble, भी but सकता I है। mean, Same हुआ है। if you're taking practical choices or decisions, I wouldn't go for a big time gamble like that. It's your entire life. I think we should take this from a practical perspective. So let me ask you a question. Please. In a situation like if I have a particular strength, but there is no one to tell me that because I am not so vulnerable with anyone. Okay. And nobody knows my strengths and my weaknesses, right? But if my partner to whom I am vulnerable with, they know what are my strengths, what are my weaknesses on which I have to work upon. So don't you think it's better that way, that they tell us what we have to work on, what is our strength, what we should ignore and what we should not? The scope of growth will be a lot more than rather than being alone. Right. I think a part of self-development is to be able to point out weaknesses and strengths by yourself. When you come to the emotional bit, right? अगर आप बोल रहे हो that probably you'd need someone to give you that kind of strength or you know put out your vulnerabilities. यहाँ पे marriage की बात हो रही है. Companionship is very different. I mean, I don't think there's a label required to it. You know, when you talk about vulnerability, right? तुमने भी देखा होगा कि when you start having a marriage, you are taken for granted and वो vulnerability becomes like a judgment sometimes. And then there is like, oh, he is like that. And that kind of really gets you also stuck in really opening up or really seeing, and that's why you go out, right? Eventually, you can manage it on your own too. So you don't necessarily have to be married to, you know, be vulnerable. I think I'm more comfortable being vulnerable outside than with my partner. ये एक्चुअली आजकल का थोड़ा सीन है कि शादी नहीं करेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। लॉजिक तो वही है, शादी के बाद भी साथ में रहते हैं, शादी के पहले भी साथ में रहते हैं। Okay. शादी से पहले ब्रेकअप होता है, शादी के बाद उसको ब्रेकअप को डाइवोर्स बोल देते हैं। ठीक है। बस, और ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी को। फर्क तो बहुत है. Like? Because यहाँ पे बस breakup हो रहा है, वहाँ पे divorce हो रहा है. Divorce is of course a part of marriage which involves too many people, and when it comes to breakup it's quite individual or a very secure relationship आप दोनों के बीच में. वहाँ पे you are involving your family, friends, Yeah. आस पड़ोस के लोग. आपका खुद का emotion से ज़्यादा you are always influenced by others' emotions. क्या शादी के बिना रहना ज्यादा पर्सनल फ्रीडम और ग्रोथ देता है? Yes. Yeah. Definitely. Big time. Big time. I think when someone is unmarried, correct, there are too many expectations when it comes to
that side of marriage that one has to serve across. After a point in time, आप बोलोगे कि okay companionship और marriage तो difference क्या है? But over there are so many other people के भी expectations that comes across to you that वो maintain आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर आपका वो freedom of expression या freedom of choice कहीं ना कहीं वहां पे चला जाता है. एंड आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम व्हेन फ्रीडम इज नॉट देयर इन अ रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर, वेदर व्हाटएवर टैग यू पुट टू इट, मैरिज और नॉट मैरिज, अ पर्सन फील्स नॉट गुड इन देयर लाइफ ओवरऑल एंड दैट डजंट मेक सेंस. आई डोंट थिंक सो कि आप अनमैरिड हो तो आपको ज्यादा पर्सनल ग्रोथ और फ्रीडम मिलेगी. आप फ्रीडम को उस सेंस में मत लो कि आपका जो करने का मन है आप कर रहे हो, फिर तो जानवरों में और हमारे में कोई फर्क नहीं है ना. फ्रीडम उस सेंस में लो कि जहां पर आप ग्रो भी कर रहे हो, सामने वाले इंसान को लिबरेट भी कर रहे हो और आप एक दूसरे में हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो. शादी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी वाइफ ने आपको पकड़ के रखा होगा तो बाहर नहीं जा सकता. नहीं, आप दोनों ने बाउंड्री सेट करी हुई है, आप दोनों एक दूसरे के कंपेनियंस हो, आप पार्टनर्स हो, आप किसी को पुल डाउन नहीं कर रहे हो. मतलब हम भी जब शादी करने के लिए बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि शादी हेल्दी होनी चाहिए. टॉक्सिक तो एनीवेज कोई भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है. ठीक है, बट उसके लिए शादी का वर्ड भी लाने की जरूरत नहीं है, है ना, कि उसके लिए ये दोनों चीजें आप विदाउट शादी भी कर सकते नहीं, हो. पर वो ट्रस्ट नहीं होता ना. ऐसे क्यों ऐसे, मतलब शादी वर्ड से क्या ट्रस्ट आता आप है? फिर आप कोई गलत रिलेशनशिप में फॉर श्योर रहे हो, क्योंकि हाउ आर यू डिफाइनिंग, अगर एक लेबल लग गया तो मतलब बस सब अभी ट्रस्ट भी आ गया, ग्रोथ भी आ गया, नहीं, फ्रीडम, लेबल सारी लगने चीजें आ की बात गई. नहीं है, आता है बात ट्रस्ट का. जब तुम्हें पता रहता है कि ये बंदा है जिसके साथ मैं लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड करने वाली हूँ, तो एक ट्रस्ट अलग बनता है. और जिसके साथ तुम एक हफ्ते के लिए मिली हो उसके साथ एक अलग ट्रस्ट बनता है. तो वो तो बिना लेबल के भी हो सकता है. इंसान किसी के साथ रहने लग जाता है तो वो ट्रस्ट के बाद ही ये स्टेज पे आते हैं कि वो अपने पर्सनल चीजें अच्छे से बताएं. इट फील्स लाइक वेयर हम लोग जहाँ से आ रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है, बट यू डोंट हैव टू पुट अ वेरिएबल. शादी आप कर सकते हो, ठीक है. आप लोग जिस उससे आ रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही शादी वर्ड लगाते हो ना, हर चीज आइडियल बन जाती है ना. No, not necessarily. बिना शादी के भी लोग contrary- रहने से कोई problem on नहीं है. contrary है. जो समझ आ रहा है, आप ये इस मोड से आ रहे हैं कि मतलब शादी एक डिमोनाइज्ड वर्ड है, कि मतलब उसमें से एसोसिएटेड ये जो आप इतने सारे फ्रीडम की बात कर रहे हो, यार लेबल और नॉट लेबलिंग इट इज इमटेरियल, राइट? यू कैन हैव द सेम फ्रीडम इफ यू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड. सो आइडियल केस सिनेरियोज नहीं होते हैं. आई मीन वी कांट कंसिडर, ओके इफ वी आर स्टेइंग इन मुंबई, वी कांट कंसिडर द सराउंडिंग्स दैट वी आर इन. यू गो टू रिमोट प्लेसेस आल्सो, वहां पे ये सारे ऑप्शंस होते ही नहीं है. अ मैरिज comes with different expectations. It is not just okay it's about two individuals in that scenario or that setup, but with marriage there are multiple other expectations that comes into the picture that cuts down on your freedom. क्या शादी से दूर रहने वाले लोग कमिटमेंट से डरते हैं? No. यस. जब पता चल जाता है ना कि हम लोग कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम के लिए रखने वाले अपने साथ या फिर उनके साथ रहने वाले हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओ शिट ये कैसे हो पाएगा. क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में हमेशा ऐसा रहा है कि कुछ हर चीज़ थोड़े टाइम के लिए आता है फिर चले जाता है, थोड़े टाइम के लिए आता है. लॉजिकली यही है लाइफ का. थोड़े टाइम कोई लंबे टाइम के लिए रुक जाता है, कोई छोटे टाइम के लिए रह जाता है. ठीक है. कमिटमेंट का इशू जिसको होता है वो शादी नहीं करता. ऑब्वियसली अपने साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं चलना चाहेगा जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ में उसने कभी निभाई नहीं है. लाइक किसी को संभालना, किसी का ख्याल रखना, किसी को लेके जाना. तो कमिटमेंट इशू है, इसलिए लोग मोस्टली शादी नहीं करते. I think commitment is a state of mind and not a marital status. So either you're married or not, you can still be committed to someone. ख्याल रखना, ध्यान रखना, कहीं पे लेकर जाना, इसके लिए शादी एज अ लेबल की जरूरत नहीं पड़ती है. As you said, commitment, I mean commitment without शादी भी नहीं, हो इसलिए सकती तो मैंने है. बोला गर्लफ्रेंड के साथ भी सेम सीन करते हैं, लेकिन उसको पता है कि ये शायद अपने साथ लाइफ लॉन्ग नहीं है. तो शादी के बाद कौन सा लाइफ नहीं है, कौन सी गारंटी है? बट सबसे पहला तो इंसान डाइवोर्स का तो यार मैं तो नॉर्मली सोचता नहीं हूँ. डाइवोर्स तो होगा तो बात की बात है, उसके लिए मैं रेडी हूँ. Right. लेकिन मैं डाइवोर्स का तो 24 घंटा नहीं सोचूंगा ना. मैं तो सोचूंगा ना ये बंदी मेरे साथ है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा. तो मतलब आप तो रिलेशनशिप में हो तो फिर आप ब्रेकअप के बारे में सोचोगे कि अभी हमें रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप नहीं, ये ध्यान में रहता है कि ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं. अभी तो तुमने बोला था किसी को नहीं पता That's ब्रेकअप हो life, जाता है, right? कोई फर्क नहीं पड़ता. Surety तो है ही नहीं ना. The thing is that life श्योरिटी in its- शादी में ज्यादा है, क्योंकि एक तरीके से ना वो रहता है कि हाँ नहीं मतलब बात करते हैं. गर्लफ्रेंड का हाँ 2 बार बात कर लिया, अब बात करने का मन नहीं कर रहा, हटाओ. अगर मैं कमिटमेंट बिना शादी के भी कर रही हूँ और आप बोल रहे हो कि मतलब शादी के बाद भी श्योर नहीं है, परमानेंट नहीं है, व्हाई डू आई इन्वेस्ट सो मच? Commitment truly is like I'm very committed to my parents, I'm very committed to my friends. I don't have to be married to be committed to anything, and because it also adds a lot of pressure. I don't see that, क्या शादी में चीटिंग प्रूव करता है कि शादी का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है? नो.
रॉबरी, मर्डर्स, ये सब इम्प्लाई करते हैं कि ह्यूमैनिटी फ्लॉड है. मतलब नहीं बोल सकते ना आप, क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग होते हैं, उनकी नेचर अलग होती है. तो आई डोंट थिंक सो ये बोल सकते हैं हम इसमें कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन फ्लॉड है. Yeah, and I think extra marital affair हो या cheating हो, वो शादी हो रही है नहीं हो रही है, that can happen either ways. So, एंड दैट्स व्हेन योर कमिटमेंट इज चेक्ड, राइट? कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरी शादी में, मैं चीटिंग कर लूँ, मैं सब कर लूँ, खून कर लूँ, खराब, फिर भी विल यू बी कमिटेड टू मी स्टिल? एंड इट्स बेस्ट एज अ कंपेनियन टू बी स्टिल कमिटेड एंड नॉट बी मैरिड, बिकॉज देन इफ अ डिवोर्स हैपेंस देयर इज सो मच ऑफ लीगैलिटीज एंड सो मच ड्रामा, so much more than what you deal with just when two people are there, and then when you're companions you get that ye non-negotiable and you can let go. So cheating and all, I think we agree on that point. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अनमैरिड हो तो आप एक खुले सांड की तरह हो. मतलब शादी एक खूंटी की तरह काम करेगी. आपका दायरा आपको पता रहेगा, आपकी बाउंड्रीज ज्यादा सेट होंगी, ज्यादा क्लियर होंगी. तो खूंटी से अगर आप किसी को बांध रहे हो, that means you are just restricting some relation. यार अगर खूंटी से बांध दी इसका मतलब थोड़ी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता. क्या शादी सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन है? Yes. yes Yeah. इट्स अ चॉइस. जब दो लोग who get along with each other and एक चीज़ है कि मतलब जब अगर शादी करने डिसाइड कर रहे हैं तो वो आपकी ओनरशिप है, आपकी लाइफ है, आपकी ओनरशिप है फर्स्ट, ठीक है. बाकी जो होते हैं मतलब अगेन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है, बट फर्स्ट तो आप एक दूसरे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक दूसरे की चॉइस है टू बी विथ ईच अदर. I mean, I really don't see it as a social obligation because society to me is an irrelevant factor in a relationship between two people. I understand that India में उस तरीके से नहीं होता है, Exactly. but I अगर mean, that does not mean that you can't start, right? अगर irrelevant है तो शादी ही क्यों करनी है, is the point, right? अगर society irrelevant है, अगर obligation ही नहीं है, तो why are you getting married? What's But the who point of created- putting that label? who created the concept and the institution of marriage? Yeah. थी वही उसने किसने यार क्रिएट किया? एक ना वो- मेंटल पीस चाहिए होता है. किसी कोई रहे साथ में जिसके साथ तुम बात करो, जिसके साथ कुछ शेयर करो. जैसे मेरा अगर बुरा दिन जाता है तो मैं घर जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, वो मुझे कुछ बताती है, टॉपिक चेंज होता है, मूड चेंज होता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है. कुछ सालों के बाद when you're continuing to do this, then ऐसा अरे यार सर दुखता है, जल्दी से जाके मैं फटाफट जाके बैठ के अपना काम कर लूंगा. यार वो तो एक्सपीरियंस बता रहा है. Exactly. So वो Exactly. होता है ना. Exactly. That's exactly what I'm saying. That being married, I know that my husband and I know कि हम फाइनली अपने आप के कान बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हम उधर या तो सिर्फ रो रहे हैं या अपनी चीजों के लिए बोल रहे हैं या एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस. यार फिर वही है कि फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बोल सकता हूँ कि कंपेनियनशिप में व्हाट हैपेंस इज इट्स लाइक यू अंडरस्टैंड दैट, यू गेट दैट स्पेस टू अंडरस्टैंड दैट, यू गेट दैट तुम उसको एक्सेप्ट करते हो तुम कैसे हो. मैरिज जैसे ही होती है देयर इज एन अनसेड एक्सपेक्टेशन एंड देन यू आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड. एंड एन कंपेनियन कैन ऑल्सो बी अ सोलमेट. जरूरी नहीं है कि शादी करना जरूरी है मुझे उसको बोलने के लिए वो मेरा सोलमेट है. Like soulmate could be, and I could have many. Marriage for that matter is definitely a societal conditioning because आपको बस बताया गया है बचपन से कि आपको शादी 12th तक पढ़ना है या फिर आपको whatever MBA करना है, उसके बाद शादी है, बच्चे है, this and that. अगर ये पैटर्न आपको नहीं दिया होता, are you sure you would have gotten married? So to summarize it very clearly, as long as it is done for the right reasons, I really don't see any problem with the institution. Yeah, I agree. If you like this video, Share your thoughts in the And comments. don't forget to Like शेयर And subscribe to Positive Change.